Hey Janandam. Good morning to all my dear students. My name is Professor Rahul Tiwari and I am working in SIT's SGI group, Bhopal, as an assistant professor. Today, our important topic is working of Babcock and Wilcox boiler. That how Babcock and Wilcox boiler will produce steam, and we discuss about parts, construction, and working of Babcock and Wilcox boiler. And this is also another important type of boiler. So we start from introduction. Babcock and Wilcox boiler is a horizontal type boiler and it is in water tube boiler first of all, and it's a horizontal type boiler, natural circulation. It is a stationary type boiler. It is a high pressure solid fuel fired water tube boiler. The efficiency of this boiler is much greater than other fire tube boiler. And this boiler is used when pressure is above 10 bar and steam generating capacity is required higher than 7,000 kg per hour. It means with the very important thing is it is in a water tube boiler and it is used where pressure is above 10 bar and steam generating capacity is required more than 7,000 kg per hour. After that, we discuss about construction of Babcock and Wilcox boiler. These are the it is a diagram of Babcock and Wilcox boiler in which it consists of, first of all, it consists of inclined water tubes. These are the water tubes which is inclined at 10 to 15 degree from horizontal axis and which carries steam, water drum, mud box, superheater. And drum is connected to uptake and downtake header. And as I explained also earlier, also that water tubes are inclined to horizontal up to 15 degree. These the baffle plates are also attached to these between the tubes in order to make circulation of hot gases in the sine wave form. This way, in which more heat will generate and more steam will generate from the boiler. These are the parts of Babcock and Wilcox boiler. First of all, it is a drum, downtake header, uptake header, water tubes. Drum, it is a horizontal axis drum which contains water and steam. These are the horizontal cylindrical type of shell which consists of water, and above water it is in steam which is collecting at top surfaces of this shell. These are the water tubes at inclined in which water is filled. In between two tubes, the hot flue gases passes through this. These are baffle plates. Baffle plates are present in between water tubes. It allow to zigzag motion of this hot flue gases from the furnace this moment, so that ज़्यादा से ज़्यादा स्टीम जो हो हमारी हमारी वाटर ट्यूब्स को हीट कर सके और जो ज़्यादा से ज़्यादा स्टीम प्रोड्यूस हो सके एट मिनिमम टाइम. दिस इज द फायर डोर. इट इज यूज टू इग्नाइट द सॉलिड फ्यूल इन द फर्नेस. फायर डोर वो होता है जहाँ से हम सॉलिड फ्यूल को जो होता है हमारा इग्नाइट करते हैं. ग्रेट हमने आपको पहले ही बता दिया, लोकोमोटिव बॉयलर में ये बेस होता है. बर्निंग ऑफ सॉलिड फ्यूल टेक्स प्लेस. इसके ऊपर ही हम अपने फ्यूल को बर्न कराते हैं. मड वो होता है जो कि डाउन टेक होल्डर में कलेक्ट होता है, जो वाटर से जब कहीं किसी जगह पे वाटर एक सर्टेन टाइम पे अगर स्टोर रहता है या फ्लो होता रहता है तो उसमें मड कलेक्ट होती है, जिसकी वजह से हम मड कलेक्टर बोलते हैं. हीट चेक वॉल, ये वॉल्व होता है जिसको हम बोलते हैं इट इज यूज टू फिल वाटर इनटू ड्रम. वाटर को ड्रम में, इस ड्रम में हमें फीड चेक वॉल्व के द्वारा ही हम यहाँ से उसको भरते हैं. डैम्पर जो होता है, इट रेगुलेट द फ्लो ऑफ एयर इन द बॉयलर. सुपर हीटेड दिस इंक्रीजेस टेम्परेचर ऑफ सैचुरेटेड स्टीम टू द रिक्वायर्ड टेम्परेचर बिफोर डिस्चार्जिंग इन स्टॉप वॉल्व. जो मैंने आपको बोला सैचुरेटेड स्टीम से कन्वर्ट करता है वो सुपर हीटेड स्टीम तक. वो सुपर हीटर उसका काम होता है, वर्क होता है. एंड दिस इज द प्रेशर गेज, वाटर लेवल इंडिकेटर, सेफ्टी वॉल्व. दिस ऑल आर द parts of this Babcock Wilcox boiler which are attached to this boiler. And I think सभी बॉयलर में ये जो गेज, वाटर लेवल इंडिकेटर, सेफ्टी वॉल्व रहते हैं क्योंकि ये इनका मेन पार्ट्स होता है बॉयलर का. हाँ, दीज आर द वर्किंग ऑफ दिस बॉयलर. फर्स्ट ऑफ ऑल वाटर जो होता है, फर्स्ट में आई विल राइट रीड इन इंग्लिश.
Then I will explain it also in Hindi. First of all, the water start to come in water tube from drum through downtake header, and this water present in the inclined water tubes get heated up the hot flue gases, and the coal burning on the grate produces hot flue gases, and it is forced to move in zigzag way with the help of baffle plate. As the hot flue gases come in contact with the water tubes, it exchanges the heat from water and current into steam. The steam then move upward and through tape down uptake header, it gets collected at the upper side in the boiler drum. The superheater receives the water-free steam from anti-priming pipes, increases the temperature of steam to desired level, and transfer it to the steam stop valve. And the superheated steam from the steam stop valve is either collected in the steam drum or made to strike on the steam turbine for electric generation. जो ये कहना चाह रहा है यहाँ पर मैं आपको समझा देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है, ये ग्रेट में हम अपना जो कोयला होता है, कोल जो होता है, इसको हम यहाँ पर कोक जो होता है इसको हम प्लेस करते हैं फायर ड्रो से, और ग्रेट के ऊपर ही हम फायर कराते हैं, इग्नाइट कराते हैं, जिसकी वजह से ग्रेट में फायर होता है और इग्नाइट करता है और कोयला हमारा बर्न करता है। इसकी वजह से क्या होता है, यहाँ पर जो वाटर ट्यूब्स लगी हैं वो इंक्लाइंड लगी हैं एट 15 डिग्री इंक्लाइन टू द हॉरिजॉन्टल एक्सिस, और ये बेफल प्लेट्स लगी होती हैं जिसकी वजह से हमारा जो हॉट फ्लू गैसेस है वो साइन वे में पास कर सके। तो इसके बाद जब कोयला जलता है, कोयला बर्न होता है, तो उसके बाद हॉट फ्लू गैसेस जो होती हैं वो पास होती हैं, और क्योंकि बेफल प्लेट्स लगी होती हैं हमारी इंक्लाइंड प्लेट्स के बीच में, क्योंकि यहाँ इस प्लेट जो ट्यूब्स होती हैं इसमें वाटर सर्कुलेट हो रहा है, इस वाटर ड्रम से यहाँ पर इस वाटर से फीड होता है और वाटर ट्यूब्स में फ्लो होता है पानी, और वाट इसी ट्यूब से बीच से बेफल प्लेट से होते हुए हम हॉट फ्लू गैसेस को पास कराते हैं इन द फॉर्म ऑफ साइन वेव फॉर्म, बिकॉज ज़्यादा से ज़्यादा हमारी हॉट फ्लू गैसेस पास हो सकें, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा टाइम तक पास हो सके, ताकि हमारा जो स्टीम हो ज़्यादा से ज़्यादा जनरेट हो सके। क्योंकि अगर हम बेफल प्लेट्स नहीं लगाएंगे तो स्टीम जो होगी इसे क्रॉस कर जाएगी एट मिनिमम टाइम, इसकी वजह से जो हमारा टेम्परेचर होगा, स्टीम जनरेट जो होगा रेट का होगा वो कम हो जाएगा। इसीलिए हम बेफल प्लेट्स लगाते हैं, ताकि हम जो हो ज़्यादा से ज़्यादा स्टीम को जनरेट करा सकें ड्यू टू ट्रेवल फ्रॉम ट्रेवल ऑफ हॉट फ्लू गैसेस इन द फॉर्म ऑफ साइन वेव। जब हमारा यहाँ पे स्टीम जो हमारा जनरेट होता है, जब हमारा टेम्परेचर बढ़ता है और स्टीम हमारा वाटर ड्यू टू फ्लो ऑफ वाटर इन द ट्यूब्स, वाटर हमारा जो स्टीम जनरेशन हमारा जब स्टार्ट होता है, तो ये हमारा सबसे पहले अगर हमारा टेम्परेचर यहाँ बढ़ेगा तो सबसे बात सही बात है कि ये वाटर जो हमारा यहाँ फिल है उसको ये भी हीट होगा। इसकी वजह से जो होता है ये हमारा स्टीम यहाँ कलेक्ट होता है एट द टॉप ऑफ दिस बॉयलर, और यहाँ से वो जो स्टीम कलेक्ट होती है वो सेचुरेटेड स्टीम होती है, जिसकी वजह से हम यहाँ पर मैंने सुपर हीटेड ट्यूब्स लगा के हमारी अटैच हुई है, जिसकी वजह से क्या होता है यहाँ से हम इसे फिर से हम जो सेचुरेटेड स्टीम होती है उसको हम पास कराते हैं इस ट्यूब से, सुपर हीटेड ट्यूब से, जिसकी वजह से जो सेचुरेटेड स्टीम होती है वो सुपर हीटेड स्टीम में कन्वर्ट हो जाए और हमारी स्टीम जो हो आगे यूज के लिए प्रिपेयर हो जाए फॉर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन या इंजन कहीं पर भी हम यूज कर सकते हैं, लेकिन वो सुपर हीटेड स्टीम ही यूज करेंगे, बिकॉज सेचुरेटेड स्टीम यूज नहीं करते हैं क्योंकि उसमें वाटर वेपर के कुछ कंटेंट रहते हैं। आफ्टर दैट क्या होता है, ये हमारा यहाँ से हॉट फ्लू गैसेस पास होके ये हमारा स्मोक बॉक्स होते हुए चिमनी से बाहर निकल जाता है हॉट फ्लू गैसेस। दिस ऑल अबाउट द वर्क, ऑल अबाउट द बेबकॉक्स एंड विल्कॉक्स बॉयलर वर्किंग। आफ्टर दैट advantages and disadvantages of Babcock and Wilcox boiler. फर्स्ट ऑफ ऑल इज वेरी इंपॉर्टेंट एडवांटेज दैट स्टीम जनरेशन कैपेसिटी जो होगी वो उसकी हाई होगी, इट इज़ अबाउट 2000 to 40,000 kg पर आवर, मतलब एक आवर में 40,000 kg तक स्टीम जो होती है ये प्रोड्यूस कर सकती है। और इसका मैकेनिज्म जो हमने बनाया था इंक्लाइंड प्लेट से, इसी की वजह से क्योंकि उसमें वेफल प्लेट्स लगाई गई थी, अटैच की गई थी, इसकी वजह से जो हमारा हॉट फ्लू गैसेस था वो साइन वेव में ट्रेवल कर रहा था, जिसकी वजह से ज़्यादा टाइम तक वो हमारे वाटर ट्यूब्स को टेम्परेचर हाई कर रहा था और स्टीम जनरेशन ज़्यादा हो रहा था। इट ऑक्यूपाइज जो होता है वो लेस स्पेस ऑक्यूपाई हो जाता है। रिप्लेसमेंट ऑफ डिफेक्टिव ट्यूब्स जो होती हैं वो आसानी से हम रिप्लेस कर सकते हैं, जो हमारी ट्यूब्स होती है इसमें वाटर फिल रहता है।
और इट इज़ द ओनली बॉयलर दैट इज यूज टू जनरेट लार्ज क्वांटिटी ऑफ हीट इन पावर स्टेशन। ये एकमात्र बॉयलर ऐसा है जहाँ ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी में हीट जो होती है वो प्रोड्यूस हो सकती है। These are the disadvantages: हाई मिनिमम, हाई मेंटेनेंस कॉस्ट, बिकॉज बेफल प्लेट्स होती हैं, पास होती हैं, इसमें पार्ट कंपोनेंट ज़्यादा लगे होते हैं और एक इंक्लाइन पे लगी होती है जिसकी वजह से मेंटेनेंस कॉस्ट ज़्यादा होता है। और इट इज़ नॉट मच सुटेबल फॉर इम्प्योर एंड सेडिमेंट्री वाटर। इन केस ऑफ इम्प्योर एंड सेडिमेंट्री वाटर स्केल में डिपॉजिट इन ट्यूब्स एंड दिस लीड्स टू ओवर हीटिंग एंड बर्स्टिंग ऑफ ट्यूब। ये केवल प्योर वाटर के लिए ही है, क्योंकि इम्प्योर वाला ज़्यादा हम अगर सप्लाई करते हैं तो क्या होता है, स्केल्स डिपॉजिट होती हैं ट्यूब्स में जिसकी वजह से ओवर हीट होता है बॉयलर में, और वो जो ट्यूब्स होती हैं ओवर हीट होने के कारण जो होती हैं वो फट भी सकती हैं और वो ब्लास्ट भी हो सकती हैं। और एक और इम्पोर्टेंट डिसएडवांटेज है कि इसमें सप्लाई जो होता है फीड वाटर का कंटिन्यू होता है वर्किंग के लिए, क्योंकि इसमें जो ट्यूब्स होती हैं इसमें वाटर फ्लो होता है। मैंने कहा था आपको वाटर ट्यूब बॉयलर होता है क्योंकि इसमें वाटर ट्यूब्स फ्लो होती हैं, तो इसमें कंटिन्यूसली फीड जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एंड इट इज द एप्लीकेशंस ऑफ बॉयलर दैट Babcock एंड Wilcox बॉयलर जनरली यूज टू प्रोड्यूस हाई प्रेशर स्टीम, जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था, इन पावर जनरेशन इंडस्ट्रीज। एंड हाई प्रेशर स्टीम सो जनरेटेड इज यूज टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। और ये Babcock एंड Wilcox बॉयलर वो बेफल प्लेट्स होने की वजह से जब ज़्यादा टाइम तक हमारी हॉट ट्यूब को पास करेंगे ट्यूब्स में तो ज़्यादा स्टीम और एक हाई टेम्परेचर स्टीम पे जनरेट होगी, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा स्टीम और पावर जो इलेक्ट्रिसिटी जो होती है हमारी उस पर भी वो यूज़ हो सकते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी में हाई प्रेशर स्टीम जनरेशन जो होता है वो यूज़ होता है। और ये Babcock और Wilcox बॉयलर वो जो होता है वो हमारी इस रिक्वायरमेंट को फुलफिल करता है। आई होप दैट यू ऑल अंडरस्टैंड दिस वर्किंग ऑफ Babcock एंड Wilcox बॉयलर। टिल देन, थैंक यू।